راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں میں ہوں ریبا نعیم اور آپ کو بہت ہی زیادہ ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام راہ زندگی میں امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں اور اس وقت ہم آپ کے ساتھ مل کر پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں۔ جی ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ جنوری کا مہینہ اور اگست کا مہینہ کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح جنوری کے مہینے میں ہر چیز کو، ہر کام کو نئے طور پر کرنے کا، آغاز کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، اور مئی جون کی گرمی میں وہ کچھ ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، لیکن جب ہی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ ساری ایکسائٹمنٹ، وہ تیاریاں، وہ جوش اور جذبہ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اگست کے مہینے میں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد دفاتر اور تعلیمی ادارے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے مدرز اپنے بچوں کے بیگس دھوتی ہیں، یونیفارم کو ڈھونڈ کر سامنے رکھا جاتا ہے، بکس اور کاپیز کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہر انداز سے بھرپور تیاری کے ساتھ پھر ایک نئے طور پر، ایک نئے جوش و جذبے سے آغاز کرنے کے لیے خوب اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ مہینہ چاہے جنوری کا ہو، چاہے جون کا ہو، اگست کا، لیکن پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے ہمارا جو شوق ہے، جو لگن ہے، جو جوش اور جذبہ اور ایکسائٹمنٹ ہے، وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ ایک سی رہتی ہے۔ اور اسی لیے آج پھر ہم سب مل کر اکٹھے ہیں تاکہ پروگرام راہ زندگی کے آج سارے بھرپور انداز میں سیگمنٹس کو سن سکیں اور خوب اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر کام کا آغاز ہمیشہ خدا کے نام سے کیا جائے تو خدا کی برکت ہوتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام راہ زندگی کا ہمیشہ باقاعدہ آغاز خدا کے پاک نام سے کرتے ہیں، تو آج کے پروگرام کا آغاز بھی تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ خدا ہم پہ رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرے کو ہم پہ جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پہ ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پہ حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، زمین نے اپنی پیداوار دے دی، خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے یا ہم دکھ اور مصیبت میں ہوتے ہیں تو خدا کا رحم طلب کرتے ہیں، خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم کرے۔ لیکن ضرور ہے کہ اسی طرح سے ہم بھی اپنے ہم جنس انسانوں پر رحم کرنا سیکھیں، کیونکہ ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر، اور اگر ہم ہی آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو کس طرح سے ہم خدا سے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں۔ تو ضرور ہے کہ ہم ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہیں، اس کا ڈر مانیں اور اپنے ساتھی انسانوں پر ہمیشہ رحم کریں، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں تاکہ ہمارا خدا بھی ہم پر رحم کرے۔ بہت ہی خوبصورت تلاوت ہم نے سنی کلام مقدس سے۔ پروگرام میں بڑھتے ہیں آگے اور خدا کا کلام یقیناً ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور یہ ایک زندہ کلام ہے جو ہمیں برکت دیتا ہے اور ہر طرح کی مشکلات کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ایسا ہی خوبصورت گیت ہم سنتے ہیں، تیرا کلام زمانے میں اے خداوندا۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ تیرا کلام زمانے میں اے خداوندا، تیرا کلام زمانے میں اے خداوندا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے
थे गीत, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपने बहुत बरकत पाई होगी। और पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है, इज्जत दी है। तो जरूर है कि इसी तरह से हम भी खुदा के कलाम की ताजीम करें, उसके कलाम को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि उस पर अमल भी करें। तो उम्मीद है कि आज की तलावत से, आज के गीत से आपने रूहानी तौर पर बरकत पाई होगी और दिल इत्मीनान और सुकून आपको खुदा की तरफ से हासिल हुआ होगा। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि अगस्त के महीने का आगाज हो चुका है और अगस्त के महीने में हमारा क्विज भी होता है जिसे हम यौम आज़ादी क्विज का नाम देते हैं। और हमारे पास हमेशा आपके लिए 3 सवालात मौजूद होते हैं जिनके ऑप्शंस भी आपको दिए जाएंगे और आपने हमें दुरुस्त ऑप्शन लिखकर भेजना है कि इस सवाल का क्या जवाब है। और इन तमाम सवालात के जवाबात आप हमें 10 अगस्त से पहले अरसाल करेंगे ताकि हम उन्हें कुरानदाजी में शामिल कर सकें। तो उम्मीद है कि आपने कागज कलम अपने नजदीक कर लिया होगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने कब रखा? पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने कब रखा? 3 ऑप्शंस है, अगस्त 1940, सितंबर 1945 या फिर जनवरी 1933। दूसरा सवाल है, पाकिस्तान का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? पाकिस्तान का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? 9 जुलाई 1948, 11 नवंबर 1947 या फिर 15 दिसंबर 1949। तीसरा सवाल है कि कराची को पाकिस्तान का दारुल खलाफा कब बनाया गया? 1 जनवरी 1948, 12 मार्च 1948 या फिर 16 फरवरी 1948। तो हमें उम्मीद है कि आपने इन तमाम सवालात को नोट कर लिया होगा और इनके जवाबात आप हमें 10 अगस्त से पहले इरसाल कर देंगे। चलते हैं प्रोग्राम में आगे। जी हाँ, हम सबका बहुत ही मनपसंद जिस सेगमेंट का हमें बड़ी बेचैनी से इंतजार रहता है, जी हाँ, हमारा बहुत ही फेवरेट ड्रामा चिरागे राह, और इसमें शुरू हो चुकी है हजरत मूसा की जिंदगी पर मबनी कहानी। आज उसकी किस्त नंबर 2 हम सुनेंगे, तो आइए मिलकर सुनते हैं। पहली किस्त में हमने सुना कि मिस्री इब्रानियों पर तरह तरह के जुल्म सितम करते थे। उनकी फरियाद और दुआ सुनकर खुदा ने अपने नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अजीब तरीके से तैयार किया कि वो इब्रानियों को मिस्रियों की गुलामी से आज़ाद करवाए। जब फिरौन ने यह हुक्म जारी कर दिया कि आइंदा से इब्रानियों के सब बेटे पैदा होते ही कत्ल कर दिए जाएं, उस वक्त हजरत मूसा की पैदाइश हुई और उनकी वालिदा ने उन्हें एक टोकरी में रखकर दरिया में बहा दिया। फिरौन की बेटी अपनी सहेलियों के हमरा दरिया पर सैर को जाती है और वहां उसे एक टोकरी मिलती है। ये रही टोकरी। खोलो खोलो, देखें इसमें है क्या। ओह, एक बच्चा, कितना प्यारा है, बेचारा किसी इब्रानी का लगता है। सलाम शहजादी साहिबा। क्या बात है लड़की, क्या चाहिए? अगर आप कहें तो मैं किसी इब्रानी औरत को बुला लाऊं जो इस बच्चे की देखभाल कर सके और इसे दूध भी पिला सके। अच्छा, हाँ ठीक है लड़की, जाओ नन्हे बच्चे की खबरगिरी के लिए किसी औरत को बुला लाओ, जल्दी करो। बहुत अच्छा हजूर, अभी लाई। क्या कहा तुमने? रोने की माँ, मैं समझा नहीं। खुदा बहुत मेहरबान है, ये उसी का काम है। वो मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। चुप हो जा मेरे लाडले, तू क्यों रोता है? हमारा खुदा तुझ पर कितना मेहरबान है। खुदा मेहरबान है? मैं कुछ समझा नहीं, बताओ ना क्या बात है। अब्बा जान, जब मैंने मुन्ने को दरिया के किनारे रख दिया तो पता है वो किसको मिला? फिरौन की बेटी को। फिरौन की बेटी को? मगर इसमें खुशी की क्या बात है? खुशी ही की तो बात है। मरियम ने उससे पूछा कि बच्चे के लिए किसी इब्रानी आया को ले आऊं, तो वो एकदम कहने लगी हाँ।
لہٰذا مریم بھاگی اور مجھے بلا کر لے گئی. اس طرح میں وہاں پہنچ گئی. یعنی تم فرعون کی بیٹی کے پاس جا پہنچی؟ تو اور کیا، وہ دریا پر تھی. مجھے کہنے لگی کہ اس بچے کو لے لو اور میری خاطر اس کی پرورش کرو، خوب نگہداشت کرو، میں تمہیں اس کی اجرت دوں گی. واہ، خدا کی تمجید ہو. وہ چاہتی ہے کہ اس کی خاطر تم بچے کو پالو. ہاں بالکل. بہت خوب. خداوند کی ستائش ہو، اس نے ہمارے لیے وہ کیا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. ابو جی، فرعون کی بیٹی نے تو منع بھائی کا نام بھی رکھ دیا ہے. ہاں یہی نام ٹھیک ہے، موسیٰ، کیونکہ اس نے اسے پانی سے نکالا تھا. موسیٰ، لگتا ہے خدا نے ہمارے لیے خاص بندوبست کیا ہے. یہ ہمارا ایک فرزند شہزادہ بن جائے. پتہ نہیں خدا کی کیا مرضی ہے. یہ انتظام مریم کی ماں کتنا عجیب ہے. بالکل بالکل. اور موسیٰ بیٹے، اب اطمینان سے سوتے رہو، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں. ابو جی دیکھنا، میرا منا بھائی شہزادہ بن جائے گا. ہاں، مگر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. اسی طرح بہت سال گزر گئے. اب حضرت موسیٰ کی پرورش محل میں ہونے لگی اور فرعون کے محل میں ان کے لیے ایک اتالیق مقرر کیا گیا جو انہیں مصری علوم و فنون کی تربیت دیتا تھا. آئیے آئیے جناب، کیا حکم ہے؟ غلام شہزادے موسیٰ کو بتاؤ کہ ہم آئے ہیں. حضور ابھی اطلاع کیے دیتا ہوں. میرے آقا، آپ کے استاد محترم تشریف لائے ہیں. اچھا، ان سے کہو کہ اندر تشریف لے آئیں. آئیے آئیے حضور، یہاں تشریف رکھیے. آج آپ کیا پڑھائیں گے؟ شہزادے، آج ہم مصر کے مذہب کا مزید مطالعہ کریں گے. میرے آقا، فرعون کے مختلف دیوتاؤں اور مقدس ہستیوں سے واقفیت آپ کے لیے اشد ضروری ہے. جی بہت بہتر. شہزادے، آپ ہمارے مذہب کے نشانات اور رسومات سے تو بخوبی واقف ہیں نا؟ مثلا سورج دیوتا را کا نشان باز ہے، اور قدیم مصر کے دارالحکومت میمفس کے علاقے کے دیوتا کو بیل کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور تھیبس کے علاقے کے دیوتا آمن کا نشان گائے ہے. مگر استاد محترم، گائے کی اہمیت تو بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے. کیا آسیس دیوی کا نشان بھی گائے ہی نہیں؟ بالکل درست. اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو دیوی آسیس مردوں کے دیوتا سائرس کی بیوی ہی ہے نا؟ بالکل درست. مجھے یقین ہے کہ آپ ان تمام دیوی دیوتاؤں کی پوجا میں کافی وقت صرف کرتے ہوں گے. کیا آپ واقعی یہ خیال کرتے ہیں؟ کیوں نہیں، آپ کا تو پوجا کرنے کا ایک شاندار کمرہ بھی ہوگا جس کو ان حسین بتوں سے راستہ کیا ہوگا. مجھے یقین ہے کہ آپ ان باتوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. استاد محترم، آپ نے بھی خوب نتیجہ اخذ کیا ہے. بہت خوب لائق شہزادے. لیکن حضور کا اندازہ درست نہیں. کیا مطلب شہزادے؟ دراصل بات یہ ہے، ان بتوں میں میری دلچسپی صرف علمی حد تک ہے، اور مجھے تو لوگوں کے سوچنے کے انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ذاتی طور پر ان دیوتاؤں پر یقین نہیں رکھتے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. حقیقت اور سچ تو یہ ہے کہ میں زندہ خدا کی عبادت کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے. استاد محترم، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں. ہاں مریم کی ماں، کبھی کبھی تو یقین نہیں آتا کہ فرعون کے شاہی محل میں ہمارا ایک بیٹا بھی ہے، اور شاہ میں ہوں فرعون کے لیے اینٹیں بنانے والا ایک غلام. واقعی بڑی عجیب بات ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں پچھلے چند سالوں سے حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا سرتاج؟ ہاں سچ ہے، اب پہلے جیسی سختی اور چابک کی مار تو نہیں رہی، مگر ابھی تک آزاد بھی تو نہیں ہوئے.
सरताज, मुझे तो खुशी इस बात की है कि मूसा इन तमाम सख्तियों से बचा हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त। और खुदा ने हमारी मरियम और हारून को भी बचाए रखा है। काश हम उसे हमेशा देख सकें, लेकिन नहीं, मैं जानती हूँ ऐसा मुमकिन नहीं, मगर हालात के मुताबिक वो बहुत अच्छा बेटा साबित हुआ है। बिल्कुल ठीक। वो ना तो हमें भूला है, ना हमारी वजह से शर्म महसूस करता है। क्या ये मुबारक बात नहीं कि वो सच्चे और जिंदा खुदा पर ईमान रखता है? ओह, मैं तो कितनी दुआ करती हूँ कि मूसा और हारून दोनों ही खुदा के बंदे हों, और ये भी कि मूसा फिरौन के बुतों से दूर रहे। खुदा का शुक्र है, उसने सचमुच हमारी दुआओं का जवाब दिया है। हाँ, हम इस बात के लिए भी बहुत शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि मूसा हमारे आबाओ अजदाद यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा पर ईमान रखता है। हाँ, अगले ही रोज शाही मैदान से गुजरते वक्त मैंने उसे देखा था। बिल्कुल फिरौन ही लगता है, लेकिन है तो हमारा ही बेटा ना। अब 20 बरस का हो गया है। सरताज, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ, ना जाने किस मकसद के लिए खुदा ने हमारे बेटे को महल में रखा हुआ है। वाकई खुदा का एक मकसद था कि वो हजरत मूसा की जिंदगी फिरौन की बेटी के जरिए से महफूज रखे। खुदा ताला हजरत मूसा के वसीले से अजीम काम लेना चाहते थे, जिससे वो अपनी उम्मत को गुलामी के फंदे से छुड़ा सके। सुन रहे थे हजरत मूसा की जिंदगी पर मबनी कहानी। हजरत मूसा जो कि खुदा ताला के बहुत ही बड़े नबी और बनी इसराइल कौम के एक बहुत ही बड़े लीडर थे, जिनको खुदा ने इस मकसद के लिए उठा खड़ा किया और इस अजीब तौर पर उनकी जिंदगी की हिफाजत की, ताकि वो खुदा की उम्मत को यानी कौम बनी इसराइल को गुलामी के फंदे से छुड़ा सकें। इसी तरह से हमेशा खुदा अपने लोगों को दूसरों की गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए किसी न किसी शख्स को इस्तेमाल करता है और उठा खड़ा करता है। अगस्त के महीने में हम भी उन तमाम शख्सियात को और ख़ास तौर पर हज़रत कायदे आज़म को याद करते हैं, जिनको खुदा ने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया कि हमें हिंदुओं और अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवा सकें और एक आज़ाद मुल्क हमें अता कर सकें। और आज हमारा फर्ज है कि हम अपने इस मुल्क की हिफाजत करें और हर मुमकिन कोशिश करें कि हमारी मुल्क की आज़ादी हमेशा बहाल रहे। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। तो खत हमें लिखा है सरदार सुहेल अहमद ने, और आप सदर हैं सरदार रेडियो लिसनर्स क्लब के। आपका ताल्लुक है हजारा से, और आप लिखते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी में गीत सुना, बहुत ही अच्छा था, और गजल जो सुनवाई गई खुशबू बिखरने से ना रोके कोई, बहुत ही अच्छी लगी। प्रोग्राम हमारी सेहत में बच्चों और बड़ों के लिए मतवाजन ग़िज़ा के उन्वान से डॉक्टर साहिबा की मुफीद गुफ्तगू पसंद आई। सिलसिला तंज़ो तबस्सुम में पेश किए गए तमाम लतीफ़े खूब थे। प्रोग्राम के आखिरी सिलसिले चश्मे बीना में मनचले नौजवान के कत्ल पर सबक आमोज बातें अच्छी लगी, और हमें अपनी इस्लाह करने वाले हर शख्स का एहतराम करना चाहिए। जी सरदार सुहेल अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़ी बाकायदगी से न सिर्फ प्रोग्राम को सुनते हैं बल्कि इसमें अपने खत के जरिए से, SMS के जरिए से शामिल भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही मजे के आपने लतीफे भी लिखकर भेजे हैं। लिखते हैं कि बीवी ने उंगली के इशारे से शोहर को बुलाया। शोहर ने कहा, क्या काम है? बीवी, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। और एक और लतीफा आपने भेजा है, किसी ने एक दानिश्वर से पूछा, सास के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? दानिश्वर कहने लगा, माजी में तो सास पोते पोतियां पालती थी, और आजकल टीवी में सास बहू के लड़ाई झगड़ों पर बहस मुबाहसा करती है। भाई दानिश्वर ने तो खूब तज्जिया किया है सास के बारे में, लेकिन पहले जैसे बातों में, कामों में, लोगों में सादगी होती थी, वो बात अब हमें उस तरह से नहीं मिलती। जितना मर्जी वक्त बदलता जाए, फैशन अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा दिलकश और पुरकशिश है, और फैशन करने में कोई बुराई भी नहीं, लेकिन जो खूबसूरती और जो मेयार सादगी का है वो किसी और का नहीं। ऐसे ही आईने के सामने फैशन और सादगी की कुछ मुकालमा आराई हो रही है। आइए मिलकर सुनते हैं। आप किसी की भी साइड ले सकते हैं। जी हाँ, आपको फैशन भी पसंद हो सकता है और कुछ लोग सादगी के भी दिलदादा हो सकते हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं इनकी गुफ्तगू। आईने में हम ज़ाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है?
ला 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 देखा न था ला 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 ला। शर्म करो शर्म, झूठी आन बान के लिए झूठ का लिबादा ओढ़ना बंद करो फैशन। चलो चलो सादगी, मुझे पता है मेरी तरक्की से तुम जेलस होती हो। ये झूठ का लिबादा नहीं है बल्कि मौजूदा दौर की जरूरत है। ना 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 ना, मौजूदा दौर की जरूरत नहीं बल्कि दूसरों को धोखा देने का फन हो तुम फैशन। धोखा? हाय अल्लाह, वो कैसे? किसी की असलियत छुपाकर उसे दूसरे रंग में पेश करना धोखा नहीं तो और क्या है? ओह नो सादगी, मैं तो लोगों को खूबसूरत बनाता हूँ, उन्हें पुराने ख्यालात से निकालकर नई दुनिया दिखाता हूँ। नई दुनिया दिखाते हो? तुम्हें अपनाकर कोई अपने सिवा दूसरी तरफ देख ही नहीं सकता, बल्कि वो तो ये चाहता है कि हर कोई सिर्फ उसे ही देखता रहे। अरे मेरी भोली भाली सादगी, कितनी अच्छी हो तुम, फिर इसमें तो मेरी कामयाबी है। अरे बुद्धू फैशन, तुम्हें देखकर लोग अंदर ही अंदर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सिर्फ तुम जैसे अपने आप को सादा कहने वाले पुराने जमाने के लोग जो जदीद तकाज़ों को पूरा नहीं करते। हमारी कदामत पसंदी तुमसे तो कहीं बेहतर है। शर्म हया, बड़ों का अदब और उठने बैठने का सलीका तो नहीं भूल गए हम। अरे आज के मॉडर्न दौर में ऐसी बातों की कौन परवाह करता है, और फिर किसके पास वक्त है कि तुम्हारी इन सादा सादा रिवायतों पर सोचता फिरे। आजकल तेजी और रोशनी का जमाना है सादगी। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी ये तेजी, मैं नहीं मानती। ना मानो, तुम्हारी कौन मानता है? सलमा की कहानी याद है? बेचारी को अपने काबू में किया हुआ था तुमने, कोई उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। शादी के इंतजार में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही थी। याद है मुझे, तुम्हारी वजह से ही बेचारी आज अपने किए पर पछता रही है। अगर मैं उसे तुम्हारे कब्जे से न छुड़ाता सादगी, तो अभी तक बैठी होती अपने घर। और ये तो मैं ही हूँ जिसने उसे इस दुनिया में मूव करना सिखाया। लेकिन जो हालात उसके अब हैं, मुझे तो शक है कहीं वो इस दुनिया से ही ना मूव कर जाए। मुझे तो उस सलमा जैसी और भी बहुत सी शख्सियात याद हैं जो तुम्हारे जाल में ऐसी फंसी कि फिर कभी खुद को ना संभाल पाई। सादगी, तुम्हारी यही बातें लोगों की तरक्की में रुकावट का सबब है, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि लोग अब तुम्हारी इन दकियानूसी बातों को छोड़ते जा रहे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन फैशन, ये जो तुम आए दिन नए नए तरीकों के जाल बुनते हो ना, ये सब आर्जी हैं, ये ज्यादा देर चलने वाले नहीं। खुद ब खुद लोग तुम्हें छोड़ते जाएंगे। अरे जा सादगी, अपनी ये खाम ख्यालियां छोड़। मेरा ये खुशनुमा फैशन जाल कभी फटने वाला नहीं। तुम तो क्या, मैंने बड़े बड़े देखे जिन्होंने मुझे खत्म करने की कोशिश की, मगर सब नाकाम। मेरा फैलाव तुम खुद देखती जाओ, और हाँ, तुम भी मेरा शिकार होने वाली हो। मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? सुन रहे थे मुकालमा आराई फैशन और सादगी के बारे में। जी हाँ, फैशन तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। हमेशा इंसान को अच्छा लगता है अपने आप को अपडेट रखना, लेकिन साथ ही साथ सादगी की खूबसूरती और दिलकशी और दिलफरेबी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, और बातें तो बहुत हो चुकी, बहुत ही गुफ्तगू बहस मुबासा हो चुका। एक और खत हमारे पास मौजूद है। ये खत हमें लिखा है नियाज अहमद नियाजी ने, और आप सतलुज लिसनर्स एंड राइटर्स क्लब बहावलनगर से ताल्लुक रखते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा आर्ट से भरपूर ये खत आपने हमें लिखा है, और आप कहते हैं कि प्रोग्राम को सुनता हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। खास तौर पर जो किसी की दिल आज़ारी ना करने पर गुफ्तगू की गई बहुत ही अच्छी थी। रहम अता कर मुझको खुदाया गीत बहुत ही अच्छा था। चरागे राह में हजरत यूसुफ की कहानी सुनी बहुत ही अच्छी थी। सिलसिला आईना में तकब्बुर और हलीमी के मुकालमे अच्छे लगे।
नगमा गए दिनों का सुराग लेकर कहाँ से आया कहाँ गया वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था, और दुआ तो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नियाज अहमद नियाजी कि आपने इतना प्यारा सा खत हमें लिखकर भेजा, हमारी हौसला अफजाई की। उम्मीद है कि इसी तरह से आप हमें खत लिखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम लिसनर्स का कि आप बड़ी बाकायदगी से प्रोग्राम को सुनते हैं, डाउनलोड करते हैं और फिर हमें बड़ी तफसील से इस पर अपनी राय, अपनी तजावीज़ भेजते हैं, अपना फीडबैक भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर बता दें कि आप हमें फेसबुक पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है जिंदगी अनवर और हमारी वेबसाइट है www.pcrm.gospelpk.com। इसके अलावा हमारा पोस्टल एड्रेस प्रोग्राम राहे जिंदगी, पोस्ट बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। इस पर आप हमें खत लिख सकते हैं, प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं और जो हमने आपको 3 सवालात लिखवाए हैं आज़ादी क्विज के, उनके जवाबात भी आप इसी एड्रेस पर हमें भेज सकते हैं। हमें SMS के जरिए से भी अपने जवाबात भेज सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0333482596 और अगर आप बैरून मुल्क से कॉल करते हो तो 0092 में लाइए और उसके बाद 3334825963। आपको याद करवा दें कि इन सवालात के जवाबात आपको 10 अगस्त से पहले हमारी तरफ रवाना करने हैं। प्रोग्राम को तो समेटने का वक्त हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे इजाजत चाहें, जी हम भूले नहीं, हमें बिल्कुल याद है कि हमें मिलकर आपके साथ करनी है दुआ। जी हाँ, आइए अपने आप को थोड़ी देर के लिए तमाम दुनियावी ख्यालात से खाली करते हुए अपने ध्यान और तवज्जो को अपने खालिक के हकीके की तरफ लगाते हैं और दुआ मांगते हैं। ए खुदा ताला, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे रहम के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे तरस के लिए जो हर लम्हा तू हम पर करता है। खास तौर पर शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम राहे जिंदगी के तमाम लिसनर्स के लिए जो इस वक्त प्रोग्राम राहे जिंदगी को सुन रहे हैं। उनके लिए सलामती की दरख्वास्त करते हैं, हर तरह से सेहतमंदी और तंदुरुस्ती चाहते हैं और तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि उनके ख़ानदानों के साथ हो, वालिदैन, बहन भाइयों, अजीज़ों कारब के साथ हो, दोस्तों अजीज़ों के साथ हो, हर तरह से उन्हें संभाल, हर तरह के खतरात से उनकी हिफाजत कर, तमाम ज़रूरियात को अपने पाक इलाही ख़जाने से पूरा कर और तमाम नेक ख्वाहिशात और नेक मकासद जो उनके दिलों में है उनको पूरा कर। ये सब मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसी के साथ अब प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। रिबा नईम को फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।